Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Preet Singh and you are watching Physics World. Today we are starting our new chapter, Mechanical Properties of Solids. I know our gravitation chapter is left, but this chapter is very small, very easy. So I decided that we can manage these two chapters hand in hand. So let's start this chapter, and this is the first chapter of your volume 2 textbook. Yes. So what is mechanical properties of solids? Now see, in volume 1 you are dealing with pure mechanics. Yes, pure mechanics, Newton's laws of motion, friction, circular motion, kinematics, rotation. These are pure mechanics topic. But now when you are entering in volume 2, you would face the chapters like solids, fluids, thermodynamics, waves, SHM, that is simple harmonic motion, if you know that, yes, and thermal expansion. So these are very different chapters. Yes, very different chapters from the previous chapters you have deal with. Yes, so these chapters require more concentration first of all, so you have to concentrate more on these chapters. Yes, although these chapters are quite easy except fluids and SHM, all the chapters are quite easy, and this is the easiest chapter of volume 2, mechanical properties of solids. But the thing is, new concepts are introduced, when new concepts are introduced, it is very difficult for us to grasp, yes, to grasp them. The previous chapters are like we have done in class 9th or 10th, yes, more in class 9th, and in rotation we have just converted the formulae. But now there are new concepts, new formulae. So let's understand this chapter. And by the way, this chapter is very important if if you are pursuing for if you are aiming for mechanical engineering, civil engineering, or some other engineering. Yes, so this is very important chapter, mechanical properties of solids and mechanical properties of liquids, and your thermal expansion, thermal physics. These are like core basis of engineering. Yes, in engineering you will see full subject on these chapters. Yes, I'm not joking, full subjects for 4 years you have to study only this chapter. 4 साल तक यही चैप्टर पढ़ना है, तो समझ लो कितना कम हम पढ़ रहे हैं, कितना कम. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर. सो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लेक्चर लगेंगे इसमें, 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा. पहले लेक्चर में हम इलास्टिसिटी मॉडुलस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व्स पढ़ लेंगे. सेकंड में हम देख लेंगे आपका आपके वो वाला जो एनर्जी वाला टॉपिक है, यस, इलास्टिसिटी वाली जो एनर्जी होती है वो वाला टॉपिक देख लेंगे. थर्ड में हम आपका दूसरी जो चीज़ें होती हैं, पॉइजन्स रेशो हो गया आपका, या आपका हो गया वो सब थर्मल एक्सपेंशन हो गया एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब चीज़ें हम थर्ड लेक्चर में डील कर लेंगे. फोर्थ में इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा चैप्टर. तो बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत सी मिसकंसेप्शंस हो आ जाती हैं हमारे माइंड में, मेरे माइंड में भी आ रखी हैं. मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपकी सारी मिसकंसेप्शंस दूर कर दूँ. सो बिना वक्त ज़ाया करे अब शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते. सो लेट्स बिगिन. सो व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? Elasticity is the property of the matter by virtue of which a body tends to regain its original shape and size after the removal of the deforming force. It's called elasticity. Yes, first of all, elasticity is not the same thing that you hear in your daily life. In daily life, we assume that a cloth or a material which stretches a more is elastic, but that's not in physics. In physics, what is elasticity? Elasticity is this कि आप जो भी फोर्स अप्लाई करो, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स लो, देखो इलास्टिसिटी इज़ अ रिलेटिव टर्म. ये ऑब्जेक्ट इससे ज़्यादा इलास्टिक है, दिस इज़ मोर इलास्टिक. एक ऑब्जेक्ट पे आप काम नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक रिलेटिवनेस. यस,
सो अगर आप दो ऑब्जेक्ट लो, लेट्स से ए एंड बी, दोनों पे आप सेम फोर्स अप्लाई करो, लेट्स से 10 न्यूटन, यस 10 न्यूटन आपने दोनों पे अप्लाई करा, ठीक है। उससे हुआ क्या, दोनों खिंच गए, स्ट्रेच हो गए। अब उसके बाद आपने वो फोर्स छोड़ दिया, 10 न्यूटन अप्लाई करा, छोड़ दिया, रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, यू हैव रिमूव्ड द फोर्स। नाउ व्हाट हैपन्स, द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विच रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब जो ज़्यादा रीगेन करेगा, देखो दोनों ऑब्जेक्ट है, कोई हो सकता है 99% रीगेन करे, कोई हो सकता है 90% रीगेन करे, वो हम निकालते हैं पॉइसन्स रेशो से, ठीक है, कितना परसेंट हुआ है, ठीक। सो जितना जो ज़्यादा रीगेन कर लेगा अपनी शेप को, वो ज़्यादा इलास्टिक कहलाएगा, ठीक है। ये नहीं कि जो स्ट्रेच ज़्यादा हुआ है वो कराएगा। आप इलास्टिसिटी को बिना डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाए कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। इलास्टिसिटी आपको डिफॉर्मिंग फोर्स हटाना पड़ेगा, तभी आप बता पाओ, ठीक है, समझ रहे हो बात। कंपेयर जब करनी है दो ऑब्जेक्ट्स की या तीन ऑब्जेक्ट्स की इलास्टिसिटी, तो यू हैव टू रिमूव द फोर्स, देन सी कि कौन सा ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप पर ज़्यादा पहुंचा है, ठीक है, कितना परसेंट का किस में डिफॉर्म आया। देखो डिफॉर्म सब में आएगा, ठीक है, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में। सो रिजिड बॉडी क्या होती है कि जिसका दो, चाहे जितना भी मर्जी फोर्स अप्लाई कर लो, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा, दैट्स एन आइडियल, ठीक है, दैट्स एन आइडियल बॉडी। इन एनसीईआरटी इट इज़ गिवन दैट्स एन आइडियल। ऑल्सो अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज़ ऑल्सो आइडियल, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कोई नहीं होता, परफेक्टली इन इलास्टिक हो सकता है, ठीक है, जैसे कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकता, एनर्जी का लॉस होता है, वैसे ही परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल भी नहीं हो सकता, ठीक है। होता क्या है, पार्शियली इलास्टिक या इन इलास्टिक। इन इलास्टिक चलता है, जैसे क्ले, क्ले आपकी इन इलास्टिक है, ठीक है, क्ले हो गया, क्ले आपका इन इलास्टिक। और भी बहुत से आपके मटेरियल्स हैं जो कि इन इलास्टिक होते हैं इन नेचर, ठीक। चलो यार, या जैसे कि कपड़ा आपका हो गया, कपड़ा भी कुछ कुछ कपड़े जैसे इलास्टिक वाले कपड़े नहीं, कुछ कुछ जैसे कि आप एक धागा ले लो, एक धागा ले लो, उसको खींचो दोनों साइड से, वो निकल ही जाएगा, ठीक है। आपने अपने स्कूल के पेपर्स में जो धागे इस्तेमाल करते हो उनको खींचना कभी, वो निकल ही जाता है, ठीक। दैट्स द थिंग, जो ज़्यादा अपनी शेप को रीगेन कर लेगा वो ज़्यादा इलास्टिक कहलाएगा इन फिजिक्स, ठीक है। इन फिजिक्स डेली लाइफ में ऐसा नहीं मानते हम, डेली लाइफ में जो ज़्यादा स्ट्रेच होता है उसको ज़्यादा इलास्टिक मानते हैं, ठीक। सो ये मुझे बताना था, क्यों, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, वो आपको जवाब देना है। आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें, सो मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए मैंने यहाँ इतना टाइम लगाया। चलो पढ़ते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स बड़ा ईजी है। डिफॉर्मिंग फोर्स इज द फोर्स विच tries to deform the shape, size and configuration of the molecules of the body. Yes, simple सा। चलो रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स की अपोजिट जो फोर्स लगेगा, विच ट्राइज टू रिस्टोर द ओरिजिनल शेप एंड साइज कन्फिग्रेशन, सिंपल सी बात है, और इट टेंड्स टू अपोज द आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। यस, नाउ बेस्ड ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉडीज। मैंने आपको पहले बता दिया था, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शली इलास्टिक और इन इलास्टिक। इन इलास्टिक को हम बेसिकली प्लास्टिक बॉडीज भी कहते हैं, विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज जस्ट लाइक योर क्ले, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ये एक आइडियल बॉडी होती है, ठीक है, आइडियल है ये, विच कम्प्लीटली रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ऐसा नहीं हो सकता कि कम्प्लीटली रीगेन कर ले। फिर आपकी पार्शियली इलास्टिक बॉडी, जो कि पार्शली रीगेन करे, ठीक है, पार्शली कुछ हद तक रीगेन करे, कुछ हद तक ना करे। अब मैं आपसे वाला क्वेश्चन पूछूंगा जो मैंने पीछे इतना आपको राम कहानी सुनाई। मुझे बताइए, स्टील और रबड़ में से ज़्यादा इलास्टिक कौन है? विच इज़ मोर इलास्टिक, स्टील और रबड़? थोड़ा सोचिए, सोच लिया, पता चल गया आंसर? तो यहाँ लिखा है आंसर, ये आप अपनी बुक में भी जहाँ पर भी नोट्स लिख रहे हो बड़ा बड़ा करके लिखना, स्टील इज़ मोर इलास्टिक दैन रबड़, ठीक है। क्यों? वही रीज़न है जो मैंने पहले दिया। माना कि रबड़ स्ट्रेच ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप पे कम आएगा, उसका परसेंटेज कम होता है, स्टील का ज़्यादा होता है। स्टील 99% रिटर्न हो जाएगा। आपका स्केल लीजिए, स्केल को ऐसे घुमाइए, फिर छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल ऐसे आ जाएगा,
रबड़ नहीं है, दैट्स वाई स्टील इज़ मोर इलास्टिक। उसके बाद फिर आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन हम अगली वीडियो में करेंगे, मुझे कुछ काम पड़ गया, सो विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।